हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. This is an application filed by the resolution professional under section 30 in bracket 6 bracket out of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 read with regulation 39 in bracket 4 bracket out of the IBBI in bracket Insolvency Resolution Process of Corporate Person bracket out regulations 2016 seeking approval of the resolution plan as approved by the Committee of Creditors in bracket COC bracket out in its 9th meeting held on 4/10/2019 with 71.32% voting in favor of the resolution plan submitted by the resolution applicant full stop para. After the conclusion of the 9th COC meeting, Mr. Sandeep Kadam, authorized representative of Messrs. ED and F. Man Commodities India Private Limited, contacted the resolution professional over a telephonic call and intimated that they are reconsidering their decision and willing to assent to the approval of the said resolution plan full stop. Mr. Sandeep Kadam also vide its email dated 4/10/2019 requested the resolution professional to change the voting of Messrs. ED and F. Man Commodities India Private Limited from dissent to assent and also requested the resolution professional to share the physical ballot paper for the purpose of voting full stop. Thereafter, the resolution plan was approved and unanimously by all the COC members by 100% voting in favor of the resolution plan full stop para. The corporate debtor New Fulton Sugar Works Limited was put under insolvency resolution process by an order of this tribunal dated 22/2/2019 full stop. Pursuant to the said order, Mr. Vishram Narayan Panchpor, having registration number IBBI/IPA 002/IP P00269/2017-18/10782 was appointed as an interim resolution professional in bracket IRP bracket out of the corporate debtor full stop. The said IRP issued public announcement inviting the claim from creditors on 23/2/2019 full stop para. Thereafter, the COC appointed applicant as the resolution professional in place of Mr. Vishram Narayan Panchpor, IRP, on their first meeting held on 22nd March 2019, vide a unanimous resolution full stop. The same was approved by this tribunal vide its order dated 28/5/2019 full stop para. Subsequently, on 8/4/2019, the RP appointed two registered valuers for valuating the assets of the corporate debtor, namely LSI Engineering and Consultants Limited and Mr. Parag Seth full stop. The applicant further submits that on 7/5/2019, the RP published expression of interest in bracket EOI bracket out in newspaper for inviting prospective bids from applicants full stop para. Pursuant to the publication of Form G, the applicant received only one bid from one Messrs. Shri Dutt India Private Limited, the prospective resolution applicant, on 5/6/2019 full stop.
Thereafter, the RP shared the information memorandum with the COC and Messrs. Shri Dutt India Private Limited on 28/6/2019 after obtaining a confidentiality undertaking from them. Full stop para. In their fifth COC meeting held on 27/6/2019, Mr. Anil Vaidya, resolution process advisor to the RP and also an independent insolvency professional, presented the draft of the request for resolution plan in bracket RFRP bracket out to the COC, and the said draft was approved by the COC after finalizing the terms of bank guarantee. Full stop. Performance bank guarantee EMD and evaluation metrics with Mr. Anil Vaidya. Full stop. Over. तो फ्रेंड्स ये हो चुका है डिक्टेशन आपका, 500 वर्ड्स हैं और लगभग 100 की स्पीड में है, 100 प्लस रही होगी, फ्लक्चुएशन दिया है हमने, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बताइएगा कैसा लगा डिक्टेशन। ये एकदम नया मैटर है NCLT का, ठीक है, कोई पुराने वाले मैटर का पार्ट वार्ट नहीं है ये, ठीक। और कमेंट करिएगा कैसा लगा डिक्टेशन। आप लोग डिक्टेशन नहीं लेते हो, डिक्टेशन लिया करो, सब्सक्राइब बढ़ाया करो, ताकि पता चले ना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। हम बस ऐसे ही डालते चले आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें नाम ठीक ठाक आए हुए हैं, अनिल वैद्य डाउनवर्ड, सॉरी N डाउनवर्ड L, अबव द लाइन का स्ट्रोक है, वैद्य V और D बनेगा केवल अबव द लाइन, ठीक है। और अच्छा, वो इसमें जैसे मेसर्स आया ना, तो मेसर्स को क्या लिखते हैं, कैपिटल M/s या कैपिटल S, ठीक है। ये मेसर्स होता है, पूरा भी लिख सकते हो आप, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करो कि NCLT के मैटर या लीगल मैटर में मेसर्स का मतलब होता है कैपिटल M/s या कैपिटल S, ठीक है। और रही बात कैपिटल और स्मॉल को बताने की, उसके लिए अलग से टाइम हम निकाल के बताएंगे ज़रूर, लेकिन हम हर डिक्टेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको थोड़ा आप ध्यान से सुना करो, ठीक है। जैसे कोई भी एक्ट या कोड वगैरह आता है ना, और उसके साथ कोई नंबर या साल आता है, तो वो कैपिटल होता है। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, तो देखिए ये इसका मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोई कोड है, कोई कानून है, उसके बारे में बात कर रहा है, 2016 में ये बना रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली है कि कैपिटल में आएगा। और जब भी सेक्शन आता है ना, सेक्शन 30 इन ब्रैकेट 6 या सेक्शन 30 या सेक्शन 40, 41, अंडर सेक्शन, इस टाइप से जब कुछ भी आता है, केवल सेक्शन का यूज़ होता है जब, तो वो सेक्शन का S कैपिटल होता है। और जहाँ सब सेक्शन आ जाता है, वहाँ सब और सेक्शन दोनों के S स्मॉल में होते हैं, ठीक है। क्योंकि सब सेक्शन हमेशा सेक्शन के नीचे आता है, मतलब सेक्शन का ही पार्ट है, इसलिए वो स्मॉल होता है। और अंडर सेक्शन, दिस सेक्शन, ऑफ सेक्शन, एंड सेक्शन, ये एक पर्टिकुलर बड़े सेक्शन की बात करता है, ठीक है, मतलब मेजर सेक्शन की बात करता है, इसीलिए इसका S कैपिटल होता है। और सब सेक्शन के दोनों S होते हैं स्मॉल में, चाहे कहीं पे भी आए। अगर कहीं बड़ा लिखा है तो आप समझ जाना कि किसी स्टेनोग्राफर की गलती ने उसको पब्लिश करवा दिया है, ठीक है। तो ये है, तो हम ऐसी ही नॉलेज देते हैं हर डिक्टेशन के बाद, तो उसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे ना, तो कैपिटल और स्मॉल के लिए आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कॉमा कहाँ लगता है, जैसे देयरफॉर के पहले और देयरफॉर के बाद कॉमा लगता है, हाउएवर के पहले और हाउएवर के बाद कॉमा लगता है हमेशा, ठीक है। हर जगह तो आप कॉमा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर, लेकिन हाँ, अगर 20 गलतियाँ कॉमा की हो रही हैं, तो आप इन सारी चीज़ों पॉइंट्स के चलते आप कम से कम अपनी 10 से 15 मिस्टेक्स कम कर सकते हो। मिस्टेक्स कंप्लीटली कॉमा की कम कर पाना मुश्किल है, लेकिन आप उसको घटा तो सकते हो ना, कहाँ 20 और कहाँ 15 कम, 5 ही मिस्टेक बचेंगी। तो ये सब थोड़ा चीज़ें हैं। अब जैसे रेड विद सेक्शन के साथ भी जो सेक्शन आता है वो भी कैपिटल होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन की बात हो रही है ना। रेड विद रेगुलेशन आता है तो वो भी R, रेगुलेशन का R कैपिटल होगा, क्योंकि रेगुलेशन मतलब एक कानून ही होता है, ठीक है। और इसके साथ नंबर आना ऑब्वियस सी बात है। अगर नंबर नहीं आता है तो फिर स्मॉल होगा। जैसे रेड विद रेगुलेशन 39 इन ब्रैकेट 4 आया है, तो यहाँ रेगुलेशन कैपिटल होगा, लेकिन रेड विद रेगुलेशन केवल आ रहा है और कोई रेगुलेशन का नंबर नहीं आ रहा है, तो वो स्मॉल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कोई एब्रीविएशन है किसी चीज़ का, ऑब्वियस सी बात है कि एब्रीविएशन है तो कैपिटल में होगा। जैसे इस मैटर में आया है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो इन ब्रैकेट में COC, तो वो COC स्मॉल नहीं होगा, वो COC कैपिटल ही होगा, ठीक है। एब्रीविएशन जहाँ कहीं भी आते हैं वो कैपिटल लेटर्स में ही होते हैं,
ठीक है, कभी भी स्मॉल लेटर में एब्रिविएशन नहीं होता है। हाँ, इसको लिखने का पैटर्न आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, जैसे MOU में O स्मॉल होता है, ठीक है, वैसे ही COC में O स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है कि आप, और ये रिवाइज कैसे होगा, कोई लिस्ट निकाल कर रिवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मैटर को जब पकड़ते हो तो उस मैटर के जितने टर्म्स हैं ना, उनको दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। तो ऐसे ही जब दिन बर दिन बीतते जाएंगे, मैटर्स आपकी नज़रों से होते जाएंगे, तो आपको ये सब एब्रिविएशन से याद होने शुरू हो जाएंगे कि कैसे क्या करना है, कौन सा एब्रिविएशन है, ठीक है। ऐसे ही होता है, लिस्ट लेके आप बैठोगे तो घंटा नहीं तैयार होने वाला है, इसलिए ना, क्योंकि लिस्ट तो दिमाग से भूल जाती है। जब तक कि अनसीन मैटर में आपने उसको लिखा नहीं है, वो दिमाग में नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। लिखवा ले लीजिए, ठीक है। रट्टा मारने वाली पढ़ाई नहीं है शॉर्ट हैंड। संदीप कदम तो आप जानते ही हैं, सर्किल ND और P पूरा बनेगा, कदम के लिए भी पूरा बनेगा, KD और M, ठीक है, अबव द लाइन का स्ट्रोक है ये। और कभी भी कंपनी के साथ एंड आए तो उसको आप रोमन में लिखिए, रोमन इन द सेंस एंड का जो साइन होता है वो लिखिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी हमेशा एंड AND नहीं लगाती है, ठीक है, वो हमेशा एंड का साइन बनाती है बीच में अगर एंड आता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम ऐसे ही बीच बीच में आपको देते जाएंगे। अच्छा, जैसे देयर आफ्टर अगर कहीं आ रहा है तो देयर आफ्टर के बाद भी कॉमा आएगा, ये भी जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैटर हम देखते हैं तो मैटर देख के हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अब हम ऐसे अगर आपको बताएं तो दिमाग में चीज़ें नहीं आती, ये आप खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करिएगा, ऐसा होता है, फीलिंग ऐसी आती है। और एक चीज़ और, अगर कोई नाम आ रहा है, जैसे मिस्टर पुरुषोत्तम तिवारी, लर्नर काउंसिल फॉर द पेटिशनर, तो मिस्टर पुरुषोत्तम तिवारी के बाद कॉमा आएगा, मतलब नाम के साथ कॉमा आएगा, ठीक है, ये भी जाने रखिए आप, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप कॉमा की मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। कंप्लीटली ओमिट कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आप मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। हर नाम के बाद कॉमा आता है, जब भी किसी साइटेशन की बात आती है या किसी भी चीज़ की बात आती है, और किसी डिस्ट्रिक्ट के बाद भी कॉमा आता है, कोई भी शहर का नाम है, गांव का नाम है, उनके बाद भी कॉमा आता है, ये भी जाने रखिए आप लोग। और जैसे ऑफ द एक्ट 2019 आया है, तो ऑफ द एक्ट के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद 2019 आएगा, मतलब ईयर से पहले भी कॉमा आता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी, डिक्टेशन की वीडियो है और हमने लास्ट में थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाली है, आप लोग वीडियोस पूरी देखा करो ताकि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता है और आप लोग करते भी नहीं हो, दिक्कत तो ये भी है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। थैंक यू सो मच।